अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान मनिहार एज डॉक्टर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Imran Manihar from class 2nd. I am a doctor. I look after the patient and treat them by giving medicine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जमीर खान एज चाय वाला। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zamir Khan from class 2nd. I am चाय वाला। चाय ले लो चाय, कठिन चाय, काली चाय। आज का प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है। मैं भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। थैंक यू। समीर खान एज फार्मर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samir Khan from class 2nd. I am farmer. मैं खेत में काम करता हूँ और मेरे खेतों में से अनाज पैदा होते हैं। थैंक यू। सना खान एज भाजी वाली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, good morning friends. My name is Sana Ansari from 2nd. I am भाजी वाली। भाजी ले लो भाजी, ताजी ताजी भाजी, आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची, अदरक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mashallah, a wonderful performance by our young stars, honoring the hard work of our community helpers. May Allah bless them all. Jazakallahu khair. Thank you. Next, we have a spring action drama titled Ya Mansal Laita, performed by our talented girls. Let's welcome the brilliant young performers to the stage with a big round of applause. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي
حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Jazakallahu khair to our talented Your action, drama and Ya Man Sallaita was truly beautiful and inspiring. Let's give them a big round of applause for such a heartfelt performance. Next, we have a thought-proving speech and Jahez ek almiya. This speech will remind us to the deep meaning behind our declaration of faith. Let's welcome Sumayya to the stage with a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala rasulihil kareem, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. मोहतरम सामाईन हजरात और हाजरीन मजलिस, आज मेरा मौजू खिताबत है जहेज एक अलमिया। हजरात इकरामी, असर हाजिर में जहेज माशरे के अंदर कैंसर की तरह फैला हुआ है। जहेज का इफरात लोगों के सरों पर सवार है। जब हम अपने लड़कों की शादियां करते हैं तो लड़कियों के वालिदैन से कार, टीवी, सोफा और नकद रुपए का मुआतलबा करते हैं। क्या हमने कभी कुरान हदीस को मुद्देनजर रखा? इरशाद इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालुम रिन इल्ला बिनफ्सिन मिन
मुमिन हो, किसी का माल उसके रजामंदी के बगैर लेना जायज़ नहीं। इस्लामी भाइयों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर रसूल सहाबियत तक की जिंदगियां जहेज से खाली है, तो फिर आप कैसे मुसलमान हो? आपका दावा इस्लाम कैसा है कि उसे अपने लायक फख्र तस्वुर करते हो? और गजब ये है कि जहेज ना लाने की वजह से उन मासूम बच्चों को मार डालते हैं। हलाल की औरत खुद एक लाजवाब नेमत है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया कुल के कुल सामान जिंदगी है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। मगर आज इस हवाइस के दौर में, जबकि अमीर से लेके गरीब तक लंबे चौड़े जहेज का ख्वाहिशमंद है, असरे हाजिर में कोई नौजवान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी जबान से ये कहे कि मुझे लाजवाब नेमत यानी नेक बीवी चाहिए, जहेज नहीं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ऐसी हालत में हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। इंसान मुश्किल से अपना खर्चा चलाता है, तो वो लाखों रुपयों अपने लाडली को जहेज कैसे दे सकेगा? अगर इसी तरह किसी गरीब आदमी की 5 या 6 लड़कियां पैदा हो जाएं और एक ही के बाद कर्ज लेने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो बेचारे के सामने न पाए रफ्तन न जाए मंदन के सिवा चाराकारी नहीं रहता। ऐसी सूरत में दुनिया की सितम ज़र्फी को देखकर अपने मुकद्दम पर रोते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों ना पैदा होते ही हमने इनका गला घोट दिया। इस्लामी भाइयों, जहेज की ये रस्म हमारी ही पैदा कर दे और हम किसी ना किसी रूप में इस वबा में मलूस हैं। ये मनहूस वबा उस वक्त तक नहीं खत्म की जा सकती जब तक कि इस काम के लिए कोई मजबूत समाजी तंजीम खड़ी ना हो जो जहेज के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाए, प्रचार करे। अब ज्यादा कुछ ना कहकर इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, खुद अपने मुंह से मांगना हिस्सा जहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं कोई उससे ये पूछे कैसे उठा सकेगा वो खर्चा जहेज का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हमें जहेज जैसी लानत से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallah khair to Sumayya Khan for that beautiful and insightful speech. Let's give Sumayya Khan a big round of applause for her inspiring words. Next, we have a very important and thought-provoking speech on Parda Islam की नज़र में, which will help us understand an Islamic perspective on modesty and the significance of the hijab. This speech will provide of us the valuable insight to the meaning and importance of Parda in Islam. सुमैया काबर आ जाए स्टेज पर, आपके लिए इनाम आया हुआ है। सुमैया, सुमैया, जज़ाकल्लाह, जिसने भी दिया जज़ाकल्लाह। Let's welcome Solia Khan to the stage with a warm round of applause. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद।
काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम, कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने इज़ाम, मेरे प्यारे भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज के इस इजलास में मेरा मौज़ूए खिताबत है पर्दा इस्लाम की नज़र में। क़ाल अल्लाहु ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, साहबजादियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने चेहरों पर अपने चादरों के घूंघट कर लिया करें। इससे करीब है कि वो पहचानी ना जाएंगी और उनको सताया ना जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। औरत की इज्जत का निगहबान है पर्दा, औरत की इज्जत का निगहबान है पर्दा, पर्दा तो खुदावंद को महबूब है पर्दा। पर्दे से जो बाहर है वो औरत ही नहीं, पर्दे से जो बाहर है वो औरत ही नहीं, औरत के लिए इज्जत और ईमान है पर्दा। अल्लाह तबारक व तआला कितने मखसूस और प्यारे अंदाज में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मोमिना औरतों को ये तंबीह कर रहा है कि उनकी शराफत की निशानी यही है कि वो अपने चेहरों पर चादरों के घूंघट कर लिया करें। आज के दौर में बेपर्दगी बड़ी तेजी से आम हो रही है और यह बदबू करीब करीब हर घर, हर समाज और हर कस्बे में फैल चुकी है। हालांकि इस्लाम ने औरतों को बहुत बुलंद मुकाम मर्तबा अता किया है। औरत शमा अंजुमन बनने के बजाय घर की मलिका बनने के लिए पैदा की गई है। मेरी बहनों, तकवा और खुदा का डर रखो, गैर महरम के सामने बेहिजाब ना हो। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है कि उम्मे खिल्लात नामी एक सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने शहीद बेटे के बारे में मालूम करने आई। उस हाल में उनके चेहरे पर नकाब पड़ा था तो उनसे बाद सहाबा ने कहा, तुम अपने मकतूल बेटे के बारे में नकाब पोश होकर मालूम करने आई हो? उन्होंने जवाब दिया, मुझ पर मेरे बेटे की मुसीबत आई है, मेरी शर्म और हया मारी नहीं गई है। सुबहान अल्लाह, एक वो वक्त था कि हमारी बहनों को इस्लामी हिजाब का इतना एहतराम था कि होश खो देने वाले वक्त में भी पर्दे के दामन को हाथ से निकलने ना देती थी। आज उन्हीं बहनों ने सारी इज्जत और आबरू और दीनदारी को फैशन और बेहिजाबी की भीड़ चढ़ा दी है। मेरी अच्छी और दीनदार बहनों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। करार पकड़ो और अपने घरों में दिखलाती ना फिरो जैसा कि दस्तूर जहालत के वक्त था। यानी इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतें बेपर्दा फिरती और अपने बदन की लिबास की ज़ेबाइश का अलानिया मुज़ाहरा करती। इस बेहयाई और बदअखलाकी की रविश को मुक़द्दस इस्लाम कब तक बर्दाश्त कर सकता है? इसमें औरतों को हुक्म दिया कि घरों में ठहरे और ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर निकलकर हुस्न और जमाल की नुमाइश करती ना फिरे। एक मुसलमान औरत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, आपके लिए इनाम आया है। सोलिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसे भी जगह नहीं हो रही है पीछे चले जाइए, इंतजाम हुआ है। पेरेंट्स प्लीज, अगर आपको बैठने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेयर्स कम पड़ रहे हैं तो पीछे चेयर्स और स्क्रीन दोनों लगे हुए हैं, तो प्लीज आप लोग पीछे बैठ सकते हैं। Jazakallahu khair to our talented kids. Your performance of Main Tota was absolutely delightful.
Now we have our delightful Marathi poem titled "मैं तोता," performed by our talented kids. The poem will take us on a journey filled with fun on learning. As the children performance with energy, the joy. Let's welcome them to the stage with a big round of applause. हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है। बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ, देख देख माली को नीचे पत्तों में छुप जाता हूँ। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है। बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ, देख देख माली को नीचे पत्तों में छुप जाता हूँ। Jazakallah khair to our talented kids. Let's give them a big round of applause for their wonderful performance. Now we have a special performance by our talented kids where they will are sharing valuable knowledge about Islam, the Aqidah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and important hadith. This performance will remind us of the teaching that guide us on everyday lives. Let's welcome the bright young performers to the stage with a bright applause. Laiba. Let's welcome these bright young performers to the stage with a big round of applause. क्या की
nation. Hadith number 2. As-siwaku mathharatul lil fami marzatul lirrab. मिसवाक मुंह की पाकिज़गी और रब की रजामंदी का सबब है. मिसवाक is a means of purification for the mouth and is cleansing to the Lord. Hadith number 3. Al-mu'minu mir'atul mu'min. मोमिन का मीन आईना है. अगली बार is the mirror of अगली बार. hadith number 4. al-haya'u minal ईमान. हया ईमान का एक हिस्सा है. modesty the branch of ईमान. hadith number 5. इदा सअलता फस्अलिल्लाह. जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगो. when you ask then ask only from Allah. hadith number 6. as-salatu nurul. नमाज रोशनी है. the prayer is light. hadith number 7. man zalla subha fahuwa fi dhimmatillah. जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में है. whoever performs the fajr prayer will be under the protection of Allah. hadith number 8. as-siyamu junnatun. रोजा बुराइयों और जहन्नम से ढाल है. फास्टिंग इज a shield. Jazakallah khair to our amazing kids. Your performance on Islam, Sirat and Hadith was truly inspiring. You have beautifully shared the teachings of our faith, reminded us of the importance of following the path of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah bless you all for your effort and dedication. Let's give them a big round of applause for their wonderful performance. Now we have a special treat for you, a lively fun performance of the Twinkle Twinkle Little Star action poem Our Talented Kids. Get ready to watch them perform with energy and joy as they bring us classic poem of life. Adila chao, bolo. Let's welcome to stage. ये वाला बोलना. Twinkle Twinkle के बाद ये वाला. Let's welcome to stage. जल्दी जाओ. Let's welcome to stage with a warm round of applause.
क्लैप कीजिए। Jazakallahu khair to our wonderful kids. Your performance of Twinkle Twinkle Little Star was full of energy and joy. You have made the poem come alive with your creativity. May Allah bless you for your effect. Let's give them a big round of applause for their amazing performance. Now we have wonderful performance by our talented kids who will sharing some important hadith with us. This performance will remind of us teaching and guidance from our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how we can apply them in our daily lives. Let's welcome them to stage with a big round of applause. Faraz. Huzaifa. बोलो जोर से बोलो, मैं पकड़ा हूँ, बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर इत्तक़िल्लाह हैथुमा उन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। हदीस नंबर 2, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान वअल्लमा, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 3, माना का सदक़ातुम मिम्मान, सदका माल को कम नहीं करता। हदीस नंबर 4, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार, हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में होगा। हदीस नंबर 5, अल कलिमातु तय्यिबातु सदक़ातु, अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है। हदीस नंबर 6, मा कश्शना वलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 7, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, जन्नत में रिश्ता काटने वाला नहीं जाएगा। हदीस नंबर 8, ला यदखुलुल जन्नता नम्माम, रूह को जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आप सब लोगों ने, इस उम्र में बच्चे ढंग से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इस बच्चे ने निहायत ही बेहतरीन अंदाज से 8 अहादीस आपके सामने बोला है। तो शानदार तालियों के साथ इस बच्चे का इस्तकबाल किया जाए। माशाल्लाह बच्चे के लिए काफी इनाम आया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। Rashid and Abdullah. ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे, तो प्लीज जरा ध्यान से बच्चों को ध्यान दें कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, आपके सामने क्या सबक देना चाह रहे हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाई, क्या आप मुझे अक़ीदा के बारे में कुछ मालूमात दे सकते हैं? जी पूछिए। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने को क्या कहते हैं? सिर्फ एक अल्लाह की हिफाजत करने को तौहीद कहते हैं। क्या तौहीद सबसे बड़ी नेकी है? जी हाँ, तौहीद सबसे बड़ी नेकी है। तौहीद की कितनी किस्में? तौहीद के 3 किस्में। कौन कौन सी? तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। फरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। क़यामत कब कायम होगी? इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। क़यामत कैसे कायम होगी? सूर में फूंक मारने से क़यामत कायम होगी। सूर में फूंक कौन मारेंगे? सूर में फूंक इसराफिल अलैहिस्सलाम मारेंगे। कुरान मजीद में कुल 25 नबियों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में कितने किताबों के नाम आए हैं? कुरान मजीद में 4 किताबों के नाम आए हैं। कौन कौन से? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। इस महीने में रोजा रखना फर्ज है। रमजान के महीने में रोजा रखना फर्ज है। भाई, आपने मुझे बहुत मालूमात दे दी। जज़ाकल्लाह। फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। अभी देखा आप लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अहम मालूमात दी। शायद से हो सकता है इसमें से बहुत सारी मालूमात हम लोग को भी पता ना हो, तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी आपके सामने एक छोटा बच्चा लारेब अस्माए हुस्ना पेश करेगा। लारेब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। ये छोटे बच्चे ने देखिए आपके सामने इतने सारे अस्माए हुस्ना बयान किया, और वो भी उर्दू के साथ इंग्लिश के अंदर। तो ये समझिए कि हमारे स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश तालीम के साथ उर्दू भी सिखाई जाती है और अरबी भी बेहतरीन सिखाई जाती है। माशाल्लाह, बहुत खूब। एक प्यारा नन्हा सा बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा है हमारे स्कूल का, माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं हमारे स्कूल के मैनेजर हाफिज नसीम साहब को दावत दूंगा
कि वो आए और एक नज़म पेश करें। हाफिज नसीम, जोरदार तालियों के साथ हाफिज नसीम साहब का इस्तकबाल कीजिए। जोरदार तालियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तमाम सामईन से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये नज़्म पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने ट्रस्टी यहाँ मौजूद हों सब स्टेज पे आ जाएं। जितने ट्रस्टी मौजूद हैं सब स्टेज पे आ जाएं। गुजारिश आप लोगों से। I request all the trustees please come on the stage. मैं तमाम ट्रस्टी से गुजारिश कर रहा हूँ। All the trustees please, सारे ट्रस्टीज प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आइए आइए असगर भाई, शहबाज भाई, शहबाज भाई आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जिम्मेदारान हैं स्कूल के, जिनके मातहती में अपना ये सुफ़ा एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह रमा दवा है। इन्हीं के साथ मैं खड़े होकर ये नज़्म पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनकलाबिया नज़्म है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप समाअत फरमाएं। अगर अब्दुल खालिक भाई हो तो वो भी स्टेज पे आ जाएं। अब्दुल खालिक भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अब्दुल खालिक भाई, नियाज भाई भी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही नियाज भाई तक तो प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाएं। नियाज भाई और अब्दुल खालिक भाई, नज़्म पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, 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 जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। लिबास गैर न होगा बदन पे जब अपने, लिबास गैर न होगा बदन पे जब अपने, तो कोई सांप न फिर आस्ती में निकलेगा, तो कोई सांप न फिर आस्ती में निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, ये सुफ़ा एकेडमी की जानिब से है कि जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा, वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे,
मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा। मुकाबला तो मुज़फ़्फ़र करूं अंधेरे से, मुकाबला तो मुज़फ़्फ़र करूं अंधेरों से, चिराग बन के पसीना जबीं से निकलेगा, चिराग बन के पसीना जबीं से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाफिज नसीम साहब के लिए इनाम आया हुआ है। जज़ाकल्लाह मुज़म्मिल भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी लोग खुफिया तौर पे इनाम दे देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी एक बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों की कोशिश की वजह से आज कुछ लोग इसमें नहीं हैं उनकी मसरूफियत की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की भी कोशिशें, उन लोगों की नेक तमन्नाएं हमारे साथ हैं। आज जो आप सुफा एकेडमी के बैनर के तहत यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं सारे लोगों के मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहीं तक ही नहीं, इंशाअल्लाह जो हमारी प्लानिंग है बहुत आगे तक है। हम लोग प्लान कर चुके हैं कि जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पिछले साल सुफा एकेडमी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड 6 तक चला करता था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2 क्लासेस आगे बढ़ाया है, 7th और 8th। और इस साल इंशाअल्लाह आपने बाहर बैनर लगा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, नेक्स्ट ईयर के एडमिशंस 25-26 मींस जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, अभी जो एकेडमिक ईयर है वो 24-25 खत्म होगा, और अगला जो अपना एकेडमिक ईयर है 2025-26 2025-26 के जो एडमिशंस चालू हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में, तो वो जो एडमिशंस हो गए इंशाअल्लाह वहां पे 2 क्लासेस और बढ़ाए गए हैं, 9th और 10th। और ये सब के सब ये हमारे यहाँ पे ट्रस्टी, हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं। इन्हीं लोगों की काविशों का नतीजा है कि हम लोग मजबूती से यहाँ पे अपना दम लगाए खड़े हैं, यहाँ पे अपने पैरों पर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि हम लोग इसको कॉलेज लेवल तक लेके जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, कॉन्वेंट में भेजते हैं। मैं खुद कॉन्वेंट में पढ़ा चुका हूँ, हिंदू कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्या तकलीफ है वो तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। वहां पे हमारे बच्चे जाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, सुबह सुबह जाके जैसे यहाँ पे फादर मदर वो सब करते हैं, फिर इसके बाद हिंदू के यहाँ पे जाएंगे, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करेंगे। मीन्स हमारे बच्चे सुबह मोमिन घर से निकलते हैं और घर पहुंचते हैं तो जाके वहां पे काफिर बन जाते हैं। तो ये क्या मंजूर है हम लोगों को? बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे काफिर हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं। ये तकलीफ मुझसे पूछिए कि मैंने 10-12 साल गैरों के यहाँ काम किया है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ सुफा एकेडमी आके काम करूं, लेकिन इतनी खुशी महसूस हो रही है कि अपने बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे जिम्मेदार खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि कौम का इतना बड़ा दर्द उनके सीनों में है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें सिर्फ आपके बच्चे दीजिए, इंशाल्लाह उनको कामयाब बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, और उनको जो भी IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बनाना, इंशाल्लाह हमारी मुस्तकबिल का प्लान है। और कब होगा? जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मोहतबाना इल्तिमास है कि आप लोग हमें आपके सिर्फ और सिर्फ बच्चे दीजिए, जितना हो सके। आप कॉन्वेंट में भेजते हैं, एक मौका हमें देके देखिए कि आपके बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, अगर इंशाल्लाह उससे बेहतर तालीम दी जाएगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट्स की, मास्टर्स की, हमारे पास जो टीचर्स की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की टीम भी आपको बताई जाएगी। टीचर्स की टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किए हुए टीचर्स आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा रहे हैं। और अगर आप देखने जाएंगे यहाँ के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मास्टर्स टीचर नहीं होंगे स्कूल सेक्शन, ये मेरा दावा है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स ऑफ
साइंस हूँ, और भी टीचर्स हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स हैं, जो मास्टर्स लेवल्स के टीचर्स यहाँ पे आपके स्कूल से सफाई करने पढ़ाए जा रहे हैं। बेहतरीन इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बोलना जान गए हैं। और हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल के जाते हैं, क्या क्या सुनते हैं उसके बारे में कि जाने दो अपना ही तो स्कूल है। नहीं, प्लीज ये जुमला मत बोले, तकलीफ होती है। ये अपना ही तो स्कूल है, अपनी कौम का है, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा दर्द है। हम ठीक है, हमारे पास अभी जगह नहीं है, हमारे पास अभी बैठने के लिए उतने अच्छे फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के बच्चे हमें मिल जाए, हमें एक तादाद मिले, एक मजबूती मिले, तो इंशाअल्लाह हमारे जो जिम्मेदारान खड़े हैं इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं, यूनिवर्सिटी बनाने को तैयार हैं। बस मुझे आप लोगों से, आप लोगों के बच्चे चाहिए ताकि हम उनका मुस्तकबिल संवार सके। और सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है, जो हम चाहते हैं, प्लान है कि हमारे बच्चे गैरों के यहाँ ना जाएं। हमारे बच्चे, देखा जाएगा बच्चियां जो हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो जाती हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं। ये क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि वो गैरों के यहाँ जाती हैं, वहां पे उनको क्या तालीम सिखाई जाती है वो हम नहीं जानते। उसका तकलीफ मैं जानता हूँ कि वहां पे क्या सिखाया जाता है। बच्चे सुबह को बुर्का पहन के जाते हैं कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि मैं हिंदू कॉलेज में काम कर चुका हूँ। बच्चे जाते हैं बुर्का, सुबह से बुर्का उतार देते हैं, अंदर टी शर्ट रहता है। क्या है ये चीज? पेरेंट्स, इस चीज पे थोड़ा तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कहां पर जा रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल कहां पर जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो प्लीज कुछ दिनों के बाद हम शिकायत करने के भी काबिल नहीं रह जाएंगे। अभी बोर्ड के इम्तिहान चालू है, पहले दिन का वाकया है, आपके यहाँ पे वसी के अंदर ये वाकया पेश आया कि बच्चों को बुर्का उतरवा दिया गया। हम लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो प्लीज आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का एडमिशन सुफा एकेडमी करवाए। इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोगों के बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हम लेते हैं बतुल्ला भाई। तो आप लोगों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम लेते हैं। बस हमें जो जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, आपके हमारे साथ यहाँ पे इंशाल्लाह इतना बड़ा सुतून हमारे सामने खड़ा है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों की टीम है हमारी, जो अलग अलग फन के अंदर अलग अलग चीजों में माहिर हैं, अलग अलग तिजारत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सारे के सारे मजदूर लोग खड़े हैं। सिर्फ ये लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ें, हमारे हाथों में रहें, ताकि ये जो हमारी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, इर्तिदाद का शिकार ना हो, गैरों का साथ ना जाएं, गैरों की तहजीब ना सीखे। तो बस आपसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाएं हमारे स्कूल के अंदर, और हमें मौका दीजिए कि हम आपके बच्चों की खिदमत कर सकें, हम कौम की खिदमत कर सकें। और यहाँ पे आप अपने ट्रस्टियों का तारीफ कराता हूँ। इनको तो सब जानते होंगे, हाफिज नसीम साहब स्कूल के मैनेजर हैं हमारे। ये हैं शमीम भाई, ये भी कारोबारी हैं, बिजनेस है इनका। मुजम्मिल भाई, इनका भी बिजनेस है। ये असगर भाई हैं, असगर भाई भी अपने बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर हैं। ये हमारे महफूज भाई, ये भी इनका भी बिजनेस है माशाल्लाह। ये हमारे हैं मौलाना मुजीब साहब, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस साथ और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। ये हैं हमारे रहमान भाई, इनका भी बिजनेस है। ये हैं शहबाज भाई, ये भी बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ। ये हमारे अब्दुल खालिक भाई, जो हर मोड़ पे खड़े रहते हैं हमारे साथ। आज ही एक बड़ा मसला हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह फौरन ही खड़े हो गए आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मसले के साथ हमारी पूरी टीम हर एक चीज के साथ खड़ी है। कोई भी मसला हो, हर एक के साथ खड़ी रहती है। ये हमारे मतुल्ले भाई, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सब के सब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन है। तो आप लोगों से यही चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी टीम हमारे साथ खड़ी है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने स्कूल्स में कराएं, अपने स्कूल में एडमिशन कराएं। और ये हमारे हैं अकमल भाई, ये खुद भी ट्रस्टी में से हैं, टीचर के साथ साथ ट्रस्टी भी है। तो ये था हमारा एक मैनेजर है, पहले ही बोल दिया गया है। तो इतनी बड़ी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी है। तो आप लोगों से हमारी पूरी टीम की यही दरख्वास्त है कि आप लोग आपके बच्चों का ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हमारे स्कूल में कराएं, ताकि यहाँ पे आपके बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथों में हो, ताकि ना कि गैरों के हाथों में हो। जज़ाकल्लाह हमारी टीम जा सकते।
और 11वीं और 12वीं का अगर बच्चों का एडमिशन कराना है तो इंशाल्लाह उसकी भी प्लानिंग हमारे पास चल रही है, और बच्चों के लिए खासकर डिस्काउंट है। तो आप लोग यहाँ वहाँ गैरों के यहाँ ना भटकें। मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अपने स्कूल में आइए, अपने लोगों के साथ जुड़िए और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ट्रस्टी मौलाना मुजीब साहब भी आप लोगों के सामने कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। मैं हमारे साथी टीचर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से वसी से आए हुए हैं, जावेद सर और साकिब सर। उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ, जावेद सर एंड साकिब सर प्लीज। एंड रुखसार मिस आप भी आ जाइए स्टेज पर। रुखसार मिस मदिया मिस आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज। I welcome Rukhsar Miss in our annual function. I request मुजीब सर, मौलाना मुजीब, हमारे दोनों साथियों का इस्तेकबाल कीजिए। माशाल्लाह ये तीनों मेरे साथी, इनके साथ में कॉलेज में काम किया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जरूरत में, किसी भी चीज पर, अभी हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह यही साथी हमारे जजेस बन के आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से भी कुछ बातें मैं जावेद सर से कहूंगा कि हमारे स्कूल बारे में 2 बातें बोल दें। आए थे, इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद सर से कि कुछ बातें हमारे स्कूल के लिए कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे अकमल सर अब तक सिर्फ हमारे थे, अभी हमारे अकमल सर हो चुके हैं, जो काफ़ी समय से उनको जानता हूँ। उन्होंने जब ये शुरू किया तब से जानता हूँ, और जो हमारा लास्ट विजिट था स्कूल में, वो विजिट बच्चों को साइंस एग्जीबिशन के हिसाब से किया था, और उसके जज भी थोड़ा बहुत जो काम हमको आता है वो हिसाब से जजमेंट भी दिया था। एंड ये जो सेकेंड इवेंट है हमारे लिए, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा, इतने लोग इसमें मिलकर हिस्सा लेंगे और इतनी बेहतर तरीके से कर पाए। आप सब जानते हैं हमारी कौम कितनी पीछे है, तो ऐसे लोग अगर हों आप लोगों के साथ, तो मैं ये ही कहूँगा कि हमारी कौम के लोग अगर चाहें तो जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और अकमल सर की मैं तारीफ कितनी भी करूँ कम है, और सच में मैं बाहर 5 मिनट पहले आ गया था, पर मैं ये सर की बातें सुन रहा था, बहुत जोश और जलाल में थे, क्योंकि शायद उनके अंदर कहीं तो दर्द है इस कौम के लिए। वो कौम के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही और करना चाहते हैं। मैं सब लोगों से यही दुआ करूंगा, सर और उनकी सभी टीम जिस तरह से ये मेहनत कर रही है और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, आप सबसे भी यही मेरी गुजारिश रहेगी, जितना हो सके उतना अपने कौम के लिए काम करिए। अकमल सर और उनकी पूरी टीम का साथ दीजिए, और हमको जब भी सर बुलाएंगे इसी तरह से हम जरूर आएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जावेद सर। रुखसार मिस, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मौलाना मुजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह।
अभी जिस तरह से अकमल सर अपने असाज़े किराम का तारुफ करवा रहे थे, उनको देखने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हुई। उनके लिए एक मैं शेर उनकी नज़र करता हूँ। जवानों फेर सकते हो तो फेरो रुख हवाओं का, जवानों फेर सकते हो तो फेरो रुख हवाओं का, अगर तुम में नहीं ताकत तो फिर तुम नौजवान क्यों हो। जब किसी स्कूल और मदरसे के टीचर्स, असाज़े किराम नौजवान हों, वहाँ तालीम का मेयार काफ़ी बुलंद होता है। क्यों? उनके अंदर सुस्ती और काहिली नहीं होती। अकमल सर ने कहा आप हमें अपने बच्चों को दीजिए। बिल्कुल, आप अपने बच्चों को दीजिए। जिस स्कूल में बच्चे नहीं, वो स्कूल कुछ दिनों में बंद हो जाता है। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो स्कूल चलेगा नहीं। स्कूल चलाने के लिए बच्चे चाहिए। अगर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद पैसे चाहिए। पैसे हर घर का दर्द है। पैसे सबके लिए ज़रूरी हैं। जो पढ़ाते हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तालीम के बारे में एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाह उधर मोड़। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास अगर तालीम नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है। वो इस तरह से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त मुसलमानों की तालीमी शरह कितनी थी। मुसलमान हर तबके में, हर सोसाइटी में तालीम याफ्ता थे, उनका बोलबाला था। लेकिन जब से मुसलमानों ने तालीम छोड़ करके पैसे को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, तब से मुसलमान पीछे चला गया। पैसे में हम कमज़ोर नहीं हैं, पैसा हमारे पास है, हम पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाने के बाद कौम का दर्द हमारे पास नहीं है। कुछ चंद लोग होते हैं जिन्हें कौम का दर्द होता है और ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। यूं ही खा के कमा के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए यूं ही ज़िंदगी गुजार दिए तो ये बेफ़ायदा है। आप कमाते हैं, उस कमाई में आपके घर वालों का हक है, आपकी कौम का हक है, आपके रिश्तेदारों का हक है, आपके बच्चों का हक है, सबका हक है। इसलिए कौम के तई हमदर्द बनिए। इस बात का रोना मत रोइए हमारे पास स्कूल नहीं है। इस बात का रोना मत रोइए कि हम दूसरे स्कूलों में जाते हैं। इस बात का रोना मत रोइए कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं। ये सब के जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया। और जब कोई बात हमारे इस्लाम को लेकर के होती है तब हमें दर्द होता है और हम शिकायत करते हैं कि हमारे बच्ची का निकाब उतार दिया गया, हमसे ये कराया जा रहा है, हमसे वो कराया जा रहा है। जब आप दौलत के लिए अपने घर से निकल सकते हैं सर पे कफन बांध करके और न जाने कितने जतन करके कितने पैसे कमाते हैं, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, गालाज, क्या क्या नहीं आपके पास है। नहीं है तो एक मेडिकल नहीं है, नहीं है तो एक हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है तो एक कायदे का आपका मदरसा नहीं है। मौलवियों के सहारे जिंदगी कब तक गुजारोगे? मौलवी बेचारा क्या क्या करेगा? ये चाहते हो कि मौलवी मदरसा भी चलाए, मौलवी स्कूल भी चलाए, मौलवी कहेगा उठो तब उठोगे, मौलवी कहेगा बैठो तब बैठोगे। तुम्हारे अंदर पैसे की जितनी तड़प है, पैसे की जितनी तुम मेहनत करते हो, वो जज्बा और वो लगन कहाँ गया तुम्हारा? कहाँ गई तुम्हारी वो तारीख? माजी की तारीख के सहारे कब तक जिंदगी गुजारोगे? वही कहते हो हमारे आबा व अजदाद थे। अरे तुम क्या हो? पहले अपने बारे में सोचो। जब रुपया निकालने की बात होती है, कौम के नाम पे जब खर्च करने की बात आती है तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे जेबों से नहीं निकलते। लेकिन वही पैसे जब अपने बच्चों पे खर्च करने होते हैं, वही पैसे जब आपको मार्केट में जाना होता है, जिस बेदरगी से आप खर्च करते हो, तब ना कोई हिसाब होता है और ना किताब होता है। मैं अल-ऐलान कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। मैं अकेला कमाने वाला, मेरे 5 बच्चे पढ़ने वाले और 1 बच्ची है, मैं सबको पढ़ाता हूँ। और तालीम का बेड़ा मैंने गांव से उठाया। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। तालीमी मुजाहरे में पहली बार जब हमारे गांव के बगल में तालीमी मुजाहरा हुआ और उसमें मैंने शिरकत की, दर्जा सोम में मैं था। और एक मेरे पास
एक नई शर्ट नहीं थी कि मैं वो शर्ट पहन करके उस तालीमी मुजाहरे में चले जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पैजामा पुराना लेकिन शर्ट मेरी नहीं थी, वो पहन करके गया और उस तालीमी मुजाहरे में मैंने हिस्सा लिया। और वो जो नज्म उर्दू पढ़ने वाले तमाम हजरात जानते होंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। तुम नेकी फैलाते हो, पैसा कमा कर घरों में भरने वालों, पैसा कमा कर अपने फ्लैट्स और बिल्डिंग्स में भरने वालों, कौम का तुम्हें दर्द नहीं और तुम रोते हो। चौराहे पे बैठ करके 1,000 2,000 दोस्तों पर खर्च करते हो। अगर कहा जाए कि स्कूल के नाम पर हम बिल्डिंग लेने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि अपने बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला वाकनपाड़ा में खड़ा हुआ, जब मैंने देखा कि किसी के अंदर ये लगन नहीं, किसी के अंदर ये जज्बा नहीं, तो मैंने अपना गाला, मैंने कहा अल्लाह के नाम पर मैं कुर्बान करता हूँ इस गाले को, और इसी गाले में मैं स्कूल की बुनियाद डालता हूँ। 25 से 30 लाख मैंने बर्बाद कर दिया, इतने धोखेबाज लोग मुझे मिल गए। मैं बिजनेस करता कि स्कूल चलाता, जिनके भरोसे मैंने स्कूल छोड़ा वो लोग स्कूल को हमारे खा लिए और निकल गए। उसके बाद फिर भी मैं चलाता रहा, जो कमाता रहा वो लगाता रहा, जो कमाता रहा वो लगाता रहा, और तने तनहा पूरे वसई बिरार में मेरा पहला स्कूल था जिसके अंदर एयर कंडीशन था। अकेला, किसी से मैंने कोई मदद नहीं ली, लेकिन जज्बा था। लेकिन वो जज्बा मेरे किस काम का? आज मैं रोड पर आ गया, मेरा पैसा पूरा डूब गया, लॉकडाउन लग गया। ये कौम के हमदर्द, पान खा के थूकने वाले, जहां देखो पिच पिच मारते हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं आती। जब बच्चों पे खर्च करने की बात आती है तो कहते हैं लॉकडाउन लग गया। किसी ने मेरे स्कूल में फीस जमा नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि स्कूल हमारा चलेगा, मैं चलाऊंगा, मैं गाला और एक दो जो मेरी प्रॉपर्टी में बेच दूंगा, लेकिन तुम स्कूल चलाओ। धीरे धीरे बच्चे खत्म हो गए, क्योंकि जिसको फीस भरनी है वो फीस के डर से आ नहीं रहा है। फीस से डरते हो? जब गहना लेना होता है मेरी माँ और बहनों, तब नहीं डरती हो। बाजार में जाती हो, एक से एक आला किस्म का गहना खरीदती हो, लेकिन जब इन बच्चों पे खर्च करने की बात आती है तो कहते हो ये कैसा मास्टर है, फीस के लिए हमारे बच्चे को खड़ा कर दिया, फीस के लिए हमारी बेइज्जती करवा रहा है। अरे बेइज्जती तो जब होती है जब तुम्हारी कौम का कोई स्कूल नहीं होता, बेइज्जती तो तब होती है जब तुम्हारे कौम का कोई हॉस्पिटल नहीं होता, तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, तब तुम सोचने पे मजबूर नहीं होते कि काश इस वसई बिरार में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों, कभी तुमने सोचा कि हमारे कौम का एक स्कूल होना चाहिए, हमारे कौम का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरी और माँ और बहनों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, अदबन अर्ज करता हूँ, अपने बच्चों पर, अपनी तालीम पर इतना पैसा लुटाओ, इतना पैसा खर्च करो कि तुम्हारा बच्चा वकील बन करके आए। ये मत देखो कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का कानून हमें इजाजत नहीं देता कि हम शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारें। कौन सा कानून तुम्हें रोकता है शरीयत पर अमल करने से? कौन कहता है नमाज ना पढ़ो? कौन कहता है मस्जिद में मत जाओ? लेकिन तुम्हारी ये मनमानियां, तुम्हारी जिंदगियां जीर्ण हो जाएंगी। अल्लाह के दरबार में तुम धुतकारे जाओगे कि तुम्हारी मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि तुम्हारे अपने ऊपर खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं कि तुम गिन नहीं सकते हो। शौहर कमा कर लाता है, उसके पैसे को गिन गिन के रखने वाली मेरी माँ और बहनों, कौम के नाम पे पैसा निकालो। हम भी कमा करके प्रॉपर्टी बनाना जानते हैं, लेकिन ये जो 10-15 हमारे अहबाब तैयार हुए कि कौम के नाम पर हमको कुछ करना है, अपनी गाड़ी कमाई लगाते हैं। हमारा कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेड़ा उठाए हैं और तलाश जारी है। सुन लो, जिसको देना है स्कूल में, जिसको अपना नाम अल्लाह के हुजूर में मसरूर कुन चेहरे के साथ अल्लाह के हुजूर में पेशगी होनी है, उन माँ और बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, उन गार्जियन और सरपरस्तों से मैं कहता हूँ कि निकालो और कौम के नाम पर कुछ खर्च करो। अगर तुम हमारा साथ दोगे, आप हमारा साथ देंगी, तो आज ये भाड़े का स्कूल कल एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में अगर दिखा नहीं दिए, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो ये बेड़ा उठा करके हम 10-15 अहबाब ने बेड़ा उठा लिया है और जी जान से लगे हैं। जगह की तलाश जारी है। अगर किसी की नजर में कोई जगह है तो बताए, सामने आकर के बताए। अगर कौम का जज्बा है और वो भी कुछ खर्च करना चाहता है तो सामने आए। ये अपने बाल बच्चों के लिए सिर्फ कब तक कमाते रहोगे? अगर यही सोच जो तुम्हारी सोच है, अगर अल्लामा अबुल कलाम आजाद ने सोच लिया होता, अगर सर सैयद अहमद ने सोच लिया होता, मैं उनके
फिक्री नजरिए पे नहीं जाता, लेकिन तालीम का जो रोशनी, तालीम की जो रोशनी उन्होंने कायम की है, आज तक पूरी दुनिया उनसे फायदा उठा रही है। सर सैयद का लगाया हुआ पौधा पूरे हिंदुस्तान में जगमगा रहा है। सिर्फ मदरसा, सिर्फ मदरसा, सिर्फ मदरसा, मदरसे के नाम पे चंदा दे रहे हो, मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे चंदा दे रहे हो। सारा सवाब तुम समझते हो इसी मदरसे में है और इसी मस्जिद में है। तुमको किसने कह दिया, किसने बता दिया कि अगर तुम जराहत का कारखाना डालते हो, अगर तुम डॉक्टरी का स्कूल डालते हो तो उसमें सवाब नहीं है? किसने तुमको बता दिया? कौन मौलवी कहता है कि स्कूल में चंदा मत दो, स्कूल में चंदा दोगे तो सवाब नहीं है? कौन मौलवी है? उसको सामने लाओ और उससे पूछो। कौम के नाम पे खर्च करना सिर्फ दो ही जगह है, एक मदरसा है और दूसरी मस्जिद, और तीसरी कोई जगह है ही नहीं। उसके बाद रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, जहां बैठते हो अपने आप पर रोते हो और अपनी कौम पे रोते हो और कहते हो हमारे पास कुछ नहीं है, सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है। अरे तुमको और सरकार को सताना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कोड़े मारना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग कोड़े के हकदार हो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना होता तो इतने कोड़े बरसते, चेहरे से हंसी गायब हो जाती, तुम्हारी हंसियां गायब हो जाती। बहुत हंसते हो, कौम का दर्द रखते हो तो सामने आओ, बोलो कि मैं कौम के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। बोलो कि हमारा ये बच्चा जो अभी अस्माए हुस्ना सुना करके गया है, ये बहुत कुछ सुनाएगा आगे चल करके। बस वही पढ़ाई पाए हो, जाओ रहमानिया में लिखा दो, जाओ मालेगांव में लिखा दो। कितने लोग पढ़ते हैं बताओ, कितने लोग पढ़ते हो? 4-5 तक की पढ़ाई पढ़ने के बाद चलो भंगार में लग जाओ। भंगार तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम भंगार के लिए नहीं आए थे दुनिया के अंदर, तुम यहाँ भंगार के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। वल्लाह कह रहा हूँ, इतना दर्द है कि कभी कभी नींद नहीं आती है रात में, कभी नींद नहीं आती है तो मेरे घर वाले पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया है? मैं खुद कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है, लेकिन दर्द है, जज्बा है मेरे अंदर। वो जज्बा है, आज मौका मिला तो बयान करके जा रहा हूँ। और निकालो, छुपा के मत रखो। ये अजदहे बन जाएंगे तुम्हारे गर्दन में, अजदहे बन के क़यामत के दिन डसेंगे। तुम्हारी दौलत तुमको डसेगी, तुम्हारी ये दौलत तुमको डसेगी अगर तुम कौम के नाम पे खर्च नहीं करोगे, अगर कौम को कुछ नहीं दोगे तो ये दौलत तुम्हें डसेगी। मेरी माँ और बहनों तुम भी सुन लो, ये जो जेवरात छुपा के तिजोरी में रखी हो, यही जेवरात तुम्हारे गले के फंदे बनेंगे। ज्यादा कुछ ना कह करके बस मैं इतनी बात कहता हूँ कि जिस जज्बे के साथ हम तमाम 15 मेंबरान ये बेड़ा उठा करके आए हैं आपके बीच में, आप लोगों से सिर्फ दुआ चाहते हैं और आपके बच्चे चाहते हैं। आप अपने बच्चों को दीजिए, हम खून से उस स्कूल को सैराब करेंगे, अपने खून से उस स्कूल को सैराब करेंगे। बस आप अपने बच्चों को दीजिए और फीस भरिए। फीस का रोना मत रोइए, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, उतना तो तुम ना जाने सब्जी वाले को 10-20 होटल में टिप्स दे करके चले आते हो, और आप लोग भी चली जाते होंगे जब जाते होंगे किसी बड़े होटल में खाना खाने, और जब इस स्कूल में फीस देने की बात आती है तब 70 हीले और बहाने होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।